పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలిగుట్ట గ్రామం. నేను కడతట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీనివల్ల మనకి చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడ్ ఇండియా. పేరు ధనుశ్రీ. మా ఊరు పేరు వెంగంవారిపల్లి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనాథంకి వెళ్ళి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనాథం పక్కనే కడతట్లపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్ళి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం, అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పిరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది వెళ్ళారు. వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామందికి చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఇంకా చాలా రీడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రీడ్ ఇండియా. Hello everyone, this is Shalini from Baritpalli. During COVID period, I attended the cyber security class conducted by Read India. Before this class, we had no idea about such frauds. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such frauds. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much. मेरा नाम रेखा सिंह है। हम कटाहरी गांव में रहते हैं। हमारी उम्र 40 साल है। हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं जी। हमारे यहाँ रीड इंडिया का सेंटर खुला है। वहाँ पर कंप्यूटर, सिलाई सबसे जुड़ा है। हम लोगों को पता चला तो हम लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन कराए और पढ़े सीखने भी आते थे। वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज़ सिलने और काटने का आ गया है। हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो इतना सब बहुत कुछ आ गया है। मास्क वगैरह, फ्राक और बेबी नेकर और बहुत से सलवार, कुर्ता, ब्लाउज, पेटीकोट बताया गया। सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले। थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ। मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है। मेरी उम्र 20 साल है। हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर समराइज से सिलाई सीखी है। पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी। उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है। और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं। इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है। मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 16 साल है। रीड इंडिया सेंटर के जो कटहरी में खुला है उससे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला। जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी, मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ। पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफ़िकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे, लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला
तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर ख़त्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नाम विनीता मौर्य है। मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। एक कक्षा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है। जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ। कोमल पाल है। मेरी उम्र 17 साल है। मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं अपने पूरे घर परिवार के। और कपड़े जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया। मेरा नाम बिंदेश सिंह है। हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर। और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ अपना सिलाई का। कोई सेंटर खोल सकती हूँ या समूह बनाकर मैं कोई इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ। जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित कार्य कर सकती हूँ। आसिम है। मेरी उम्र 21 ईयर है। मैं BA द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरे ग्राम का नाम कटहरी चंद्राय है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता था। इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके। और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं। और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीखकर हम आगे अपने रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं। आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं। वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना। उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी ज़रूरी होती है। शारीरिक हाइजीन्स में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए। तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे, जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है, जो हमने अच्छे समझा है। सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे संपर्क में है, उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें। समय पर एंटीबायोटिक दवाएं लें। मैम ने हमें ये जल से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड। ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने कोविड-19 के बारे में भी बताया था, जो चल रहा है, इससे हमें बचना चाहिए। ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होगा। और मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है, जिससे हमारी जो श्वास नली होती है वो उसमें सूजन आ जाती है,
तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है, तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है कि हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद। मेरा नाम मीना पांचाल है। मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है। कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है। शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है। मैं विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीड इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और 5 स्टेज इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया। और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ाए। शायद ही क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापा जाता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया। और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजुअली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीका का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीबी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया।
उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर, किडनी, इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है, और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। और ये बहुत ही अच्छे से मैम ने हमें समझाया। एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स देने के लिए। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं बारां ज़िले के भावनगर कस्बे की रहने वाली हूँ। और अभी जैसा आप सब जानते हैं, लॉकडाउन के चलते कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, कोविड इतना बढ़ा हुआ है। तो हमें इस माहौल में रीड इंडिया में टेली सीखने का मौका मिला। हमसे जो पहले लड़कियां थीं, बड़ी छोटी हमसे, उन सब ने सीखा और इस चीज़ के बारे में उन्होंने हमें बताया। परचेस अकाउंट, क्रय विक्रय, इसमें ख़रीदना और बेचने के बारे में, और हर एक चीज़ की जानकारी उन्होंने हमें दी और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला इस चीज़ से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें सब चीज़ें बताई। और टेली में बहुत सी चीज़ें थी जो पहले मुझे समझ में नहीं आती थी, वो ट्राई करती थी पर आती नहीं थी। फिर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें धीरे धीरे आराम से, हमने पूछा उनसे, क्वेश्चन करे, उन्होंने हमें आंसर दिए आराम से, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमें सब चीज़ें बताई के बारे में। परचेज़ कैसे करते हैं, माल बेचा कैसे जाता है, ख़रीदा कैसे जाता है, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने हमें बताया। लेन देन कैसे होता है। बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबका, रीड इंडिया का, टेली का, मैम सर वगैरह का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़ के हमें बहुत खुशी हुई। मैं निर्मला पांचाल बोल रही हूँ और गांव भंवरगढ़ की रहने वाली हूँ। और इसमें जो लॉकडाउन के दौरान रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनिंग कराई गई थी, उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टेली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टेली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें, लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है इससे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है। और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया। लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवाएं से जो करे व्यय प्राप्त किया जाता है, उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है, वसूली मूल्य जिसे बाज़ार में कोई चीज़ या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियाँ के बारे में बताया गया था। संपत्ति 3-4 प्रकार की होती है, जैसे कि चल, अचल, धरस्य, अधरस्य। धरस्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो धरस्य संपत्ति होती है। अधरस्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अधरस्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीज़ें की जानकारी दी गई मैम ने। और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने। हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है। मैं बारां जिले के मुसेन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है। तो इस माहौल में रीड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में
डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं। और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि परचेज कैसे करते हैं, माल ख़रीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं। इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को, जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा ज़िले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या ख़रीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय, परचेज़ करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की, लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी। लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए, पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके क्वेश्चन जो कि हम नहीं कर पाते थे वो क्वेश्चन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है। हेलो, मेरा नाम मुस्कान बनर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फ़ोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी। मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ और तुम और भी बच्चे, रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, यानी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फ़ोटोशॉप के अंदर जैसे फ़िल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर करना, उसके बाद वो शरीर को अलग करके वहाँ पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सीखा था। जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया। हेलो, नमस्कार रीड इंडिया वाले। मैं मंजू हूँ, मैं गांव परानिया की रहने वाली हूँ और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रीड इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है। हमने यहाँ पर फ़ोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें। और मुझे राजविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रीड इंडिया। रीड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना और बैंक
का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा। इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से, मान लो किसी ने फ़ोन कर दिया कि जे तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, इसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फ़ोन आए, ये तुम्हारा फ़ोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही ख़राब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते हैं। हम इसमें सतर्क हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे, जो टेलिंग में, जो उसमें अभी हम बढ़िया तरह से सीख गए। हमारे मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें स्टोर पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे। और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत कहाँ से भी आए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। टेलिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से। मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हम जैसे शॉपिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जो हमें पता ना हो। और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी, मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है। और ये खुद मैंने भी, मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट, हमारी OTP, ये सब मैं उनको भी ये सब करके जागरूक करवाऊँगी। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शिवांगी सोनी है। मैंने साइबर सेफ्टी से ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने सीखा है, जिसमें हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली हैं जिससे हमें, मतलब हमें किसी को अपना पासवर्ड वगैरह नहीं बताना चाहिए। और जब अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो जानी मानी वेबसाइट से हमें शॉपिंग करनी चाहिए। और हमें हमारा पासवर्ड वगैरह किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और इस ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे अपने सार्वजनिक क्षेत्रों से वाईफाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहिए कि ये जो अपने मोबाइल में फालतू मतलब मैसेज आते हैं कि आपको ये नहीं, इतने का प्रॉफिट वगैरह ये मैसेज आते हैं, तो हमें उनका रिप्लाई नहीं देना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। इसलिए हमने ये साइबर सेफ्टी ग्रुप में ट्रेनिंग ली है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम साधना राठौर, मैं ग्राम देवरी से हूँ। मैंने रीड इंडिया साइबर सेफ्टी से ऑनलाइन ट्रेनिंग की है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारा पर्सनल नंबर, OTP, मैसेज किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और सार्वजनिक वाईफाई का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और हमारे मोबाइल पर मैसेज आए कि आपको इस चीज़ से इतना प्रॉफिट है, तो इस पर क्लिक करें, तो उस पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। और भी बहुत कुछ सीखा है जो आगे चलकर हमारे भविष्य में काम आए। जैसे हमें ऑनलाइन शॉपिंग जानी मानी वेबसाइट्सों से ही करनी चाहिए जिसके बारे में हमें जानकारी हो। और हमें FB पर अपनी पर्सनल जानकारी नहीं डालनी चाहिए। और भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारा मोबाइल का पासवर्ड मजबूत रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। और मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड सभी को जागरूक करूँगी कि अपने बैंक अकाउंट, OTP को कैसे सेव रखें। मेरा नाम अंकिता बंसल है। मैं भवरगढ़ 12
राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक बीएससी किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचें के बारे में बताया गया था, और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फ़ोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। ये लिंक्स कभी कभी हमारे फ़ोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम या फिर छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें हैशटैग, @ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी ऐप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू। नेहा राठौरे, मैं बबरगढ़ की रहने वाली हूँ और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी और इस पर हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी बैग्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी और इनमें वो शहद, घी और वो ग्रीसलीन और डिब्बाम ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको 3 तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में। और रीड इंडिया में यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था और इसमें मीना दीदी भी थी और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया। मेरा नाम लीना यादव है। ग्राम हरिद्वार, पोस्ट बोयल, तहसील सावर, डिस्ट्रिक्ट बारा से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं। किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीज़ें थी उसमें, पेज बनाना, ये सब कुछ था उसी में। और अपना ऑनलाइन अपना मोबाइल, लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें और OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीज़ें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली हैं। थैंक यू। मेरा नाम जया बंसल है और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। इसमें हमने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है। और फेसबुक पर पेज कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है। किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से। और मैं ये करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है।
और इस तरह से मैंने अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रीड इंडिया। मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और अब पेंटिंग बनानी सीख ली, बेबी पेंटिंग ये बना ली मैंने। और अब वो बना के आई अम्ब्रेला वाला बाद वो प्लाजो। ठीक, अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे? हाँ, मैं 2 बार लेके थी। 2 बार आप लेके गए हो। मेरा नाम नीसू सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ। और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी, पर वहाँ कहीं दुकान भी नहीं थी और ये तो बहुत महंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाती है, तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है, विनटेक केंद्र। तो मैं भी उनके साथ जाने लगी, यहाँ के सीखने लगी और मुझे आता भी कुछ नहीं था। मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना देती हूँ। और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान, मतलब अनजान जो लड़कियाँ आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है और कोई भी मतलब बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम भी मिला था और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसमें सिखाया था और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूँगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूँगी अपनी, जिस पर मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ। नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। मैं तन्नू सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ मतलब बहुत अच्छी सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए, जैसे सूट, सलवार, प्लाजो, पैंट, बहुत सारे ब्लाउज। खुद कटिंग कर लेती हो? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी? कैंची भी चलानी नहीं आती। कैंची भी चलानी नहीं आती थी, अच्छा। तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में? मैं यही दूसरों की हेल्प पहले तो, हाँ, और फिर अपनी एक छोटी सी शॉप, बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ से सीखने के बाद? मेरा नाम गीता है और मैं यहीं पास से तुगलपुर गाँव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीज़ों के साथ बहुत लेडीज़ पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ। और फिर पढ़ते पढ़ते 1 साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे सिलाई का शौक़ था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ और यहाँ आके तो एक नई ज़िंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए। बड़े खुशी से आते हैं बच्चे, कौन सिखाता है, नहीं तो 1000 रुपये देते हैं मंथ के यहाँ पे। तो बच्चे, गरीब बच्चे नहीं सीख पाते, बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं यहाँ सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने की। उनको फ़ायदा में रहती हूँ। मेरे गाँव, मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जिनमें से कि मैंने ऑनलाइन सेविंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब बहुत कुछ पता है। अब मैं इसके बारे में सीख चुकी हूँ और जानकारियाँ मैं देती रहूँगी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेविंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम मैम का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी, बट जब यहाँ पे जुड़ी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फ़ोटोज़ वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स, फ़ोटोज़, ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रीड इंडिया सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ। इन सब चीज़ों से मैं अनजान थी, पर जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। ज़रूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसे, ये मायने रखता है। हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज़ में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, ज़रूरी ये है।
जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं। हमने इस समय में हम खाली नहीं बैठे, रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के। लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे FM रेडियोज़ को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था। लेकिन रीड इंडिया सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाज़ों को सुनते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं, बट कभी जाना नहीं। जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीज़ें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें जानकर, करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आप के सामने जो बोल पा रही हूँ, ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला। हेलो, मेरा नाम तनु है। मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल सीखने को मिली है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फ़ायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू। मेरा नाम रितिका है। मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। यह कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज़ किया है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज़ होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज़ करना चाहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम माया श्री है। मैं 32 साल की हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर द्वारका सेंटर से टैली का कोर्स कर रही हूँ। मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ। मेरा नाम वंशिका जैन है। मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख रही हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में सीखा और अब मैं अपने फ़ोटोज़ एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिज़ाइनिंग करना सीखा और पैम्फलेट्स बनाना सीखा और मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रही हूँ। और मैं अपना करियर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइन में बनाना चाहती हूँ। मेरा नाम उपासना है। मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया, जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू। मेरा नाम रेशमा वर्मा है। मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में
जेब लगाना, इन सब चीज़ों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट, प्लाजो, फ्रॉक सूट, ये सब। और अब मैं बहुत खुश हुई सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं वहाँ रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है। और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। चाहे कितनी बार भी पूछो, बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ। आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूँगी, और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूँगी, अपने भी बाहर के भी। और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई ज़रूर करती रहूँगी। जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम गर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। और मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था, और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूँगी, जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूँगी, अपना काम निकाल पाऊँगी और अपना कुछ करियर कर पाऊँगी। जॉब भी करना चाहूँगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको ज़रूर अप्लाई करूँगी। मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह, गले की डिज़ाइन, बाजू सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ। मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला। जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक। और पहले मुझे गले की डिज़ाइन वगैरह, सूटों की डिज़ाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है। मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरी अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू। मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे, लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए नए डिज़ाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रीड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रीड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है। मेरा नाम मीनू है, मैंने रीड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी, जो मैं किसी के पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती भी हूँ और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ शाहबाद मोहम्मदपुर में। थैंक यू सो मच। मेरा नाम किरण राजपूत है, मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रीड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया, जिससे कि मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया। हेलो, मेरा नाम आशू है, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ।
मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरे फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रीड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीक़े से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया। हर्बल प्रोडक्ट जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया। मेरी फैमिली को भी यूज कराया। सबको बहुत अच्छा लगा और सब ने मतलब बहुत तारीफ़ किया। इसलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशन का कोर्स करना था तो मैं ब्यूटिशन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फ़ीस बहुत महंगी बताई जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं रीड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशन का कोर्स करना है। तो मैम ने मुझे ब्यूटिशन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए ब्यूटिशन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशन का कोर्स पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि महंगी फ़ीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थँक यू सो मच सुमन मॅम अँड थँक्यू सो मच रीड इंडिया सेंटर. हाय, माझं नाव सामी इस्माईल जोगेकर आहे. माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे. मी रीड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते. त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, परत प्रिंस कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरह सर्व शिकते. हाय, मेरा नाम है रेशमा अब्दुल रऊफ जोगिलकर. मैंने 12वीं की हूँ साइंस से अंजुम गोरेगांव से और मैं 3 महीने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ बेसिक टेलर कोर्स का. और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनबाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट. थैंक यू. हाय, माझे नाव अक्षता अशोक कांबळे. मी ॲग्रिकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगावमध्ये इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे. त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लागण्यासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जातं आहे आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या रीड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या. त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते. थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन अडविलकर. माझं शिक्षण TY BAमधून झालेलं आहे. मी इथे रीड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे. त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकली आहे. थँक्यू रीड इंडिया. माझं नाव नौशीन वजीर जोगिलकर. माझं शिक्षण 12वी. मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास. 3 महिन्याचा कोर्स आहे. त्याच्यामध्ये बिनबाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवलं गेलं आहे. हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत. आपकी उम्र? 22. रीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली? कंप्यूटर की और पार्लर की. ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं.
ट्रेनिंग लेने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं। आप आगे क्या करना चाहती हैं? कंप्यूटर की कोचिंग देंगे और कंप्यूटर में ही स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब करेंगे यहाँ पे। आपका नाम क्या है? स्वाति। आपकी उम्र? 24। रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग ली? यस मैम, हमने 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का। तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा? कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग, बेसिक सीखा आपने। और पार्लर में? पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग। ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकती मैम हैं? कंप्यूटर सीखने के बाद घर पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाता है कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम हो रही है। और पार्लर का? पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है वो भी। अच्छा, जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ? यस मैम, पहले से ज़्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। गुड। आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैम पार्लर में ही करना है, पार्लर खोलना है। अपना पार्लर खोलना है? जी। अच्छा, तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर? जी। माझे नाव आदिती संजय वाळंकर, माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे ताटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली. रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटरे मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो. जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे ताटरे मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमने आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे. त्यामुळे आम्ही ताटरे मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत. माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर. माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली. या वतीने टाटरे मॅडम, रीड इंडिया व टाटरे मॅडम यांचे मी आभार मानतो. माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष. रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला. यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं. त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. माझं नाव श्वेता रोशन सकपाळ, वय 29 वर्ष. रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला. या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो. या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू. रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोवाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद. मेरा नाम लफ्सा है. मैं रीड इंडिया पटवाई सेंटर सिलाई सीखी है. मैं पटवाई में रहती हूँ और मैं इस सेंटर में आती जाती रहती हूँ. इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है. अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ. इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं. इस रीड इंडिया में सिलाई सीखकर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ. उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फ़ीस करती हूँ, जमा करती हूँ. मेरा नाम निशा है. मैं पटवाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है. मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिज़ाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ. और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिज़ाइन के कपड़े सिखा सकूँ. मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद.
मेरी एज 21 है। मैं लास्ट गेट पर रहती हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर में एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझसे काफ़ी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग कुर्ती, डिज़ाइनिंग पैंट प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफ़ी सिलाई आ चुकी है। और मेरे डिज़ाइनिंग मैं अपने डिज़ाइन खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना डिज़ाइन सिलाई करना। और मेरे डिज़ाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफ़ी सिलाई आती है घर पर। और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ। और मैं पहले मतलब अपनी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ। पढ़ाई वगैरह का भी काफ़ी कुछ अपने लिए कर सकती हूँ। मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। मेरा नाम पल्लवी है। मैंने रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है और मैं घर पे सिलाई करती हूँ, जिससे पैसे मिलते हैं। मैं उसको पढ़ाई में लगाती हूँ और मैं सेंटर का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे गांव में सेंटर खोला। हेलो, मेरा नाम शबाना है और मैंने सिलाई सीखी। मैम ने यहाँ पे बेसिक सिलाई और एडवांस स्टिचिंग के बारे में बताया मुझे, तो मैंने एडवांस स्टिचिंग कोर्स किया। फिर मुझे यहाँ पर मौका मिला अपने सेंटर चलाने का। रीड इंडिया ने मुझे सपोर्ट किया। रीड इंडिया ने मुझे सपोर्ट किया, वो बोली कि आप स्टार्ट करें और सपोर्ट हम करेंगे आपको। तो मैंने घर पर जाकर सेंटर भी खोला और सिलाई पर कपड़े भी सिए। सबको पसंद किया और काफ़ी लड़कियां भी आ चुकी हैं मेरे पास सिलाई पर सीखने के लिए। पहले हम घर पर खाली रहते थे, अब हम लड़कियों को सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं। और मतलब जैसे जैसे लड़कियों को पता चलता है, वैसे वैसे वो लड़कियां भी आती हैं हमारे पास, जो दूर से भी आ रही हैं। और इससे ये भी फ़ायदा हुआ कि हम पहले कुछ नहीं कमाते थे और अब हम कम से कम 2000 या 1500 रुपये महीना कमा लेते हैं और अपने घर पर मतलब घर के खर्च में हो जाते हैं। जैसे पहले थी परेशानी, इस तरह से थोड़ी आसानी हो गई हमें। ये चाहती हूँ कि मैं जो सेंटर जैसे चल रहा है, तो मैं इसको और आगे लेकर जाऊँ और इसको और अच्छे से चलाऊँ। जैसे मेरे पास और लड़कियाँ और औरतें आ रही हैं, तो मैं उनको अच्छे से सिखाऊँ और खूब सीख कर जाऊँ। बस थैंक यू रीड इंडिया, थैंक यू। शशि है, मैं तोपखाने गेट पर रहती हूँ और मैंने एडवांस सिलाई का कोर्स किया है और मुझसे काफ़ी अच्छी सिलाई आ गई है, जिसमें मैंने नई नई कुर्ती मतलब नए डिज़ाइन की कुर्ती बनाई है, जो भी मैंने खुद से सिलाई। और पहले मुझसे कुछ भी नहीं आता था, अब बहुत कुछ आता है और बाहर की सिलाई भी मैं ही करती हूँ। और मैंने घर में मशीनें लगा रखी हैं, मुझसे बहुत अच्छी सिलाई आ गई है। और मतलब मुझसे अपने घर वालों से मैं पैसे मांगती थी खर्चे के लिए, लेकिन अब मुझे सिलाई आती मेरे पास, तो मैं अपना खर्चा पूरा खुद करती हूँ और अपने घर वालों को भी मैं देती हूँ कमा के अपनी मेहनत से। रीड इंडिया को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरा नाम पिंकी है। मैं रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी हूँ। मैं अपने घर में अपने कपड़े खुद सिल लेती हूँ। जो पैसे बाहर जाते थे उसकी बचत होती है। मैं वो पैसे अपने पेरेंट्स को देती हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं अपने घर में एक सिलाई सेंटर खोलूँ, जिससे मैं लड़कियों की सिलाई सिखा सकूँ। इसलिए रीड इंडिया ने मेरा सपना पूरा किया, इसलिए मैं रीड इंडिया सेंटर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अमरीन है। मेरी उम्र 15 साल है। मैं कलघर नालापार में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से टेलर और सिलाई की ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आया। जैसे कि मैंने कुछ लोगों के सूट सिलकर दिए, जिससे मुझे अधिक मुनाफा हुआ। सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया और अब मैं अपने जीवन की समस्याएं खुद हल कर सकती हूँ और अपने जीवन के निर्णय भी खुद ले सकती हूँ। मेरे जीवन में अधिक सुधार लाने के लिए मैं रीड इंडिया सेंटर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आगे कुछ कर सकूँ। मेरा नाम हिफ्ज़ा है और मैं कटकुया गैर शफुद्दीन खां से हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर का कोर्स किया है। रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर की जानकारी मिली है, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब भी करना चाहती हूँ। और रीड इंडिया सेंटर से मुझे बहुत ही अच्छा कंप्यूटर कोर्स आया, जिसकी वजह से मुझे ईमेल आईडी भी अपनी याद रहती है। पहले मुझे ईमेल आईडी याद नहीं रहती थी, लेकिन रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स करने के बाद मुझे अपनी ईमेल आईडी याद रहती है और मुझे पासवर्ड चेंज करना भी आ जाता है। पहले मुझे पासवर्ड चेंज करना नहीं आता था। मैं रीड इंडिया सेंटर का शुक्रिया करती हूँ, जिसने मुझे इतना अच्छा कंप्यूटर कोर्स सिखाया है। थैंक यू सो मच।
मेरा नाम मंजू है। मैं रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। मैंने सेलिंग मतलब कपड़े बेचने की ट्रेनिंग ली है। मैं ये जो भी कपड़े सिलती हूँ यूट्यूब पे डालती हूँ और मुझे उससे बहुत फ़ायदा है। वो मुझे अपनी पढ़ाई का खर्चा मैं खुद चला रही हूँ। जो भी मैं व्हाट्सएप द्वारा डालती हूँ वो उससे मेरे रुपए आते हैं, वो मैं उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा चला रही हूँ। इससे मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी है और मैं रीड इंडियन का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम हिना है। मेरी उम्र 22 एज है मेरी, और मैंने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से स्टिचिंग का कोर्स किया है, सिलाई का, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इससे पहले मुझे कुछ नहीं आता था। रीड इंडिया सेंटर से आने से पहले यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं सिलाई के बारे में, कैसे कपड़ों को सीते हैं और क्या क्या सिलाई में सब कुछ सीख लिया है। इसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। इसके अलावा मैंने महिपाल सर की क्लास ली है ऑडियो वीडियो एडिटिंग की। उसमें महिपाल सर ने मेरी बहुत ऑडियो पसंद आई उन्हें, और मैं इसमें ही फ्यूचर भी बनाना चाहती हूँ और मैं इंटरेस्टेड भी इसी में ही हूँ, ऑडियो वीडियो में। तो मैं यहाँ से मैं अपना फ्यूचर भी यहीं से बनाना चाहती हूँ, ऑडियो वीडियो से। अच्छा हिना, आपने कोई अपनी वॉइस शेयर की थी? जी, कोई वॉइस मैंने शेयर की थी अपनी, और महिपाल सर को बहुत पसंद आई। कोविड पर थी वो, कोविड पर, कोरोना वायरस पर, जिसमें सब लोगों को बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहती हूँ कि ये आगे भी लेवल पर और आगे मैं इसमें इंक्रीज करूँ। अच्छा, जीवन का निर्णय लेने में कोई आप में सुधार आया? कोई अपना फैसला ले सकती हो आप हाँ, इतना? यहाँ पर आने से पहले कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब सबसे मिली, गर्ल्स के बीच में बैठी, तो कॉन्फिडेंस बहुत आया और मैं अब अपने निर्णय खुद भी ले सकती हूँ। तो हिना, आप आगे क्या करना चाहते हो? मैं आगे, अभी तो मैं बीएससी कर रही हूँ, इसके बाद मैं चाहती हूँ कि ऑडियो वीडियो में अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर रीड इंडिया। आपका नाम? मैम, मेरा नाम काजल है। काजल, आपने रीड इंडिया से कौन सी ट्रेनिंग ली है? मैंने कढ़ाई की ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग लेने के बाद कढ़ाई की अब आप क्या कर रही हो? मैं अपने घर पे ही काम कर रही हूँ कढ़ाई का। अपने घर पे ही काम कर रही हो, तो आप अकेले अपने घर पे काम करती हो या भाई बहन या मम्मी पापा कोई हेल्प करता है? बहन हेल्प करती हैं। आप कितने रुपए महीना कमा लेती हो? ऐसी महीने में 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार रुपये महीना कमाती हो। उन पैसों का क्या करती हो? मैं उन पैसों को अपनी पढ़ाई में भी लगा लेती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत, और थोड़ा कढ़ाई के काम में भी आ जाता है। पढ़ाई के काम में करती हो। आगे क्या करना चाहती हो? मैं आगे अपना ही काम शुरू करना चाहती हूँ, दुकान खोलना चाहती हूँ। मैम, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रीड इंडिया का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है। मैं घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ। रीड इंडिया कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, जैसे कि लिप बाम, बॉडी बैग्स, बॉडी बटर और वगैरह काफ़ी कुछ सीखने मिला है, और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं रीड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। राधिका। आपका नाम क्या है? राधिका। राधिका जी, आपकी उम्र क्या है? 18 साल। अच्छा, 18 साल। आपने रीड इंडिया सेंटर से कौन सी ट्रेनिंग ली? पेज पर कढ़ाई का काम सीखा आपने? जी। अब आप सीखने के बाद में आप क्या कर रही हैं? जी, मैंने कढ़ाई का काम सीखा और लड़कियों को भी सिखाती हूँ। अच्छा जी, लड़कियों को भी सिखाती हो? जी, घर पर ही कार चौबी का काम करती हूँ। घर पर कार चौप का काम करती हैं। कितने पैसे कमा लेती हैं आप? 5,000 महीने पर। 5,000 रुपये कमा लेती हैं आप। और आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मैं कार चौबी का कारखाना खोलना चाहती हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम है और मेरी एज 18 ईयर्स है, और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं। तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूं अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूँ, मम्मी पापा से नहीं लूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूँ, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूँ खुद भी। फिर मुझे यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है,
और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। सॉफ्ट स्किल्स भी किया है मैंने। सॉफ्ट स्किल्स में मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स किया है। और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी, और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा है दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का, एक हिम्मत आई है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके। और अब भी मैं पूरी कंप्लीट फेस स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से कम कर लेती हूँ और मैं अपना खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और पहले मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही। मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है, उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइंस अपलोड किए और मैं उसको अब सेल करती हूँ इस पर। उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने में इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे रीडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मेरी रीडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रीडिया सेंटर।